हाय स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? होप यू गाइस आर नॉट वेरी रिलैक्स्ड सो बिकॉज एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं. कंसिडर इट एज एन एडवांटेज, टेक फुल benefit out of it rather than just wasting your time in relaxing or being happy that now you have that time, and being happy that now you have time but not utilizing it. Don't do that. So I am specifically making this video just so that, because I know mostly more than 50% for sure students are relaxed right now, thinking that abhi exams mein time hai, and thoda sa, some of you might have reduced the hours of studying, some of you might have increased your social media timings. So ठीक है, you should you might have been relaxed for a day or two, उतना बनता है, but now get to track एंड फोकस कि हम इस टाइम को कैसे अच्छे से और यूटिलाइज कर सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमें बॉदर कर रही थी एंड वी वर नॉट एबल टू फोकस इन देम बिकॉज द एग्जाम्स वर कमिंग, एंड we were more focused on revising and quick completing the subject rather than focusing on making a particular topic, making yourself proficient in one particular topic जिसमें आप always you think that it is something difficult and आपको उसमें वो challenging लगता है, and आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में उस particular topic पे आप गलती कर सकते हो, या you can lose your marks in that particular thing. So इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए this is this particular video, rather not discussion rather, but if after watching this video if you feel that you need to discuss something, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ नहीं कवर करी है, and you want to discuss that particular problem with me which you're facing right now or otherwise in your preparations, you can definitely reach out to me and email me, WhatsApp me, whatever you feel is comfortable for you, you can do that and we can connect, and I will try my best to help you out in it. So what my page says, exams tips for effective study, जो कि अभी पढ़ पढ़ के आप लोग सारे बोर हो गए होंगे, so how to give you some tips जिसमें आप effectively उसको जो भी आप अपना time निकाल रहे हैं for studying, you study effectively, efficiently, which is most important. कितने घंटे पढ़ रहे हो but effectively उसका कोई output नहीं निकल रहा तो कोई फायदा नहीं है. And जो बच्चे high, if you are aiming for more than 60 marks or highest marks in a particular topic, or in most of the subjects, or you are aiming for a rank, so if you follow these tips तो वो चीज़ आपको help करेगी in scoring well in exams, and maybe if you consistently and rigorously religiously follow these tips, you'll definitely be able to score a good rank, because these are the tips which have to be followed consistently and alongside. So let's just move to the pointers. So now what are these pointers? Let me just quickly go one by one, and then I'll discuss key how this will help you in scoring well and probably getting a good rank or getting good marks in a particular topic, and all the more clearing your level, be it executive, professional, CA inter, CA final, CMA final. So this is for all CA, CS, CMA students. Everyone who is preparing for this such type of professional exams can watch this video and take these pointers and adopt them in your study pattern, and you'll definitely benefit from it. So like I said, planning is the most important part. Why? Because planning is essential so that you can start your whatever you are going to do, that is focused on a particular objective or a particular goal, which is to clear your exams or get good marks in your exams or score a rank in your exam. सो हर एक का अलग अलग गोल या एम है, एंड आपको प्लानिंग उसी हिसाब से करनी है, because if you have a goal like you
only have a goal that you have to clear your exam in one shot, उसका strategy, उसकी planning अलग तरीके से होगी. If you are planning to get a rank, उसकी planning strategy अलग तरीके से बनेगी. तो planning is important. A systematic approach towards your studies will definitely, benefit, give you a benefit and make you excel in whatever you do, rather than just going by your gut feeling, or just, picking up a book and doing the subjects you like, or whatever you the way you like, you are doing it, and उसमें कोई consistency नहीं है, that is not going to give you any benefit. So which is why planning is important, कि आपको किस चीज़ को कैसे स्टार्ट करना है, किस चीज़ को कितना टाइम दे के स्टार्ट करना है. आप एक ही चैप्टर पे 3-3 4-4 दिन लगा रहे हो, या एक ही टॉपिक को लेके उसी को प्रैक्टिस करते जा रहे हो, उसी में उसी पे टाइम लगाते जा रहे हो, एंड आपका पूरा सिलेबस अलग से पड़ा है, एंड आपने 20 to 30% टॉपिक्स अच्छे से कर लिए और आपका 70% ऑफ सिलेबस अभी रहता है. तो all of this will be avoided, and if you are planning well. And this particular scenario mein, what I mean from planning is that you need to plan right now कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, या फॉर दैट मैटर आपके सब्जेक्ट्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको you want that you have to kind of give more attention, जो आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट हैं बट उनका वेटेज भी ज़्यादा है एग्जाम्स में, विच इज़ मोस्ट लाइकली ज़्यादा केसेस में यही सिनेरियो होगा कि टॉपिक डिफिकल्ट है, आपने कर लिया है पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस टॉपिक पे, एंड उस टॉपिक को आप उठाओ जो वेटेज वाइज भी ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आपको उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी चाहिए. फोकस ऑन सच टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. आपके पास थैंकफुली इंस्टीट्यूट की वो गाइडलाइंस हैं जिसमें हमें वेटेज के हिसाब से पता है कि इस टॉपिक का ये वेटेज रहता है. यू कैन गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स टू अ सर्टेन कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू सिलेक्टिव स्टडी, बट राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपने पूरा सब्जेक्ट कवर कर लिया है और आपको लगता है कि हाँ अब आपको बार बार एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बट ऐसे डेफिनेटली कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे उस पर्टिकुलर ऐसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक्स होंगे सब्जेक्ट्स में जो आपको पता है कि उनका वेटेज ज़्यादा है, एंड यू माइट ऑल्सो डू सम मिस्टेक्स और माइट गेट स्टक समवेयर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर. तो आप उन टॉपिक्स को उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो ज़्यादा. So this is what is right now you want to plan about. This is one of the ways, one of the key ways where you can get your focus and get your attention into the exams and prepare well, and also effectively study about that one particular paper, because ऐसा बहुत से बच्चों को लगता है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, बट आउट ऑफ ऑल दो स्टूडेंट सिर्फ 10 से 11% ही रिजल्ट आता है. हर कोई अपनी तरफ से 100% तैयारी करके जाता है, 200% तैयारी करके जाता है, बट रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है. सो आप ये समझो कि आपको अभी उस टॉपिक में पूरा ध्यान लगाना है, एंड उसको ये करके करना है कि मुझे कोई भी आई हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट शॉट. एंड अंदर से हर बच्चे को पता होता है हाउ वेल प्रिपेयर्ड ही और शी इज. सो डू नॉट, मतलब औरों को तो जो आप औरों को आप कुछ भी कह सकते हो, बीट योर पेरेंट्स, बीट योर फ्रेंड्स, बीट एनीवन, बट अपने आप को धोखा मत दो बाय सेइंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल. तैयारी कभी भी पूरी या सफिशिएंट नहीं होती है. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डूइंग मोर. सो विच इज़ वाई आई एम हेयर टू मेक यू रियलाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट. इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर इज डेफिनेटली समथिंग और द अदर जो रह जाएगी, बिकॉज हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, हम लोग पढ़ पढ़ के थोड़ा इतना मोनोटोनस हो जाते हैं कि वी डू नॉट फील लाइक सिटिंग अगेन एंड स्टडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. बट
दिस इज द ओनली टाइम जो आप सैक्रिफाइस करके सिर्फ अपनी स्टडीज में डिवोट कर सकते हैं. वंस यू क्लियर एंड गेट थ्रू योर एग्जाम्स, दिस टाइम इज नेवर गोइंग टू कम बैक. एंड ट्रस्ट मी, जो आपका फर्स्ट टाइम का जोश होता है या जो आपका इस टाइम पे जो डेडिकेशन होता है टुवर्ड्स योर एग्जाम, अगर आप उसको फुली यूटिलाइज कर लेंगे तो नो मैटर आपने पहले पढ़ाई करी है या नहीं करी, मगर आप अगर इस तरीके से अभी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू योर एग्जाम्स, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. So coming to my first point, what planning I am here referring to is that you have to focus on those particular topics of your subjects which have a heavy weightage in the exam, heavy weightage of marks in the exams, and which you think कि difficult भी है and they you might do some mistake in it. उन topics को उठाओ, उन topics को brush up करो, make them your strong points. Also, do not leave other topics. I will not say कि उनका revision नहीं करना है, उनका revision quickly करो. Increase the coming like take a look at my other point number 6 where I'm saying repeated revisions. You have to make a point कि आप अपने, for example, if you're studying 8 to 10 hours in a day, तो डिवोट दैट टाइम कि आप उसमें 1-2 घंटे का वो टाइम रखें जहाँ पर आप इजी टॉपिक्स को उठाएं, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ योर ब्रेन की brain भी your brain can also get tired if you are if you have prolonged hours of studying. So give that break to your brain as well, and 1-2 घंटे आप उसको उसमें ऐसे टॉपिक्स के लिए रखो जो topics important हैं, easy हैं, and they have good they are important from exam point of view also. So ऐसे subjects को अगर if you're comfortable studying one single subject in a day, do it like that. If you're comfortable studying twice 2 subjects in a day and study alternate subjects in a day, जैसे आपको पढ़ना है आप वैसे पढ़ो, बट आप अपने उन 8 से 10 घंटों को ऐसे डिवाइड करो कि आप उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ, राइट. स्टडी थ्योरी और प्रैक्टिकल को कंबाइन करना है, और प्रैक्टिकल को ज़्यादा टाइम देना है, थ्योरी को कम देना है. ऑल ऑफ दैट आई एम लीविंग इट टू यू गाइज. बट व्हाट आई एम यहाँ मेरे तरफ से क्या आपके लिए एक वैल्यू ऐड है, दैट इज कि अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने एक अपनी ग्रिप बना ली है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा आपके बैक ऑफ द माइंड कि ऐसे कुछ टॉपिक्स अभी भी आपको लगता है कि उनमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. उसके साथ साथ टेक आउट टाइम एंड फॉर टेक आउट टाइम इन अ वीक. एक वीक में आप 2 मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स करो, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली टेल यू वेयर यू एक्चुअली स्टैंड इन योर प्रिपरेशन. दिस इज द ओनली वे वेयर इन यू कैन गेट अ चेक कि आप ने कितनी तैयारी कर ली है एंड एक्चुअली में व्हाट हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स आर अ वेरी important way to judge yourself or to examine your performance, because once you appear for that 3 hour paper, तो आपको अपसाइड डाउन पता चल जाता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है. नो मैटर आपने अदरवाइज आपने बैठ के बहुत बार रिविजन किया हुआ है, बट दैट इज अ टोटली डिफरेंट चेक वंस यू सिट डाउन फॉर दैट 3 hour पेपर. सो मेक इट अ पॉइंट कि आज से आई एम श्योर आप लोगों का सिलेबस एक एक बार सबका रिवाइज हो गया होगा. जिनका नहीं हुआ है 10 दिन और दे दो अपने आप को, बट मेक इट नोट दैट आपने हर एक सब्जेक्ट का 1 या 2 मॉक टेस्ट करना ही करना है, so that you can know कि आपकी कहाँ कहाँ, because trust me, once you appear for a mock test,
appear for your by yourself. I mean, pick a previous year question paper और उसको करने की कोशिश करो घर बैठ के, बट उसको करना उसी तरीके से है। 3 घंटे आइसोलेट योर सेल्फ एंड उसको, जब पेपर शुरू किया है 3 घंटे तक बैठकर उसको 3 घंटे के अंदर ही करना है। कोई स्प्लिट्स में नहीं करना कि मैं 1.5 घंटे अभी कर लिया 1.5 घंटे बाद में, नो। Give it like a proper exam paper and you will definitely see, and आपको अपने आप को पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। आई एम डेफिनेटली श्योर। उसको सेल्फ चेक करो, उसको सेल्फ इवेल्युएट करो, यू विल डेफिनेटली सी एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम हो रहा था। ये सब कुछ सामने आपके अपने आप आ जाएगा। नाउ कमिंग टू मेकिंग नोट्स, अब आप लोगों के पास, सबके पास अपने प्रॉपर नोट्स होंगे, सब कुछ होगा, बट बाय दीज नोट्स आई एम सेइंग रिविजनरी नोट्स बनाओ अपने। अगर आपको लगता है कि राइटिंग करके थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होएगा, मेक ऑडियो नोट्स, मेक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इफ़ यू आर रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, स्टार्ट योर ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड देन लिसन टू इट कंसिस्टेंटली। जब आपको टाइम मिले, मॉर्निंग में, लेट नाइट जब आप सो रहे हैं तब, सोने से पहले सुनो, उठ के ड्यूरिंग योर टी टाइम, और वाइल यू आर गोइंग आउट टू बाय अ ग्रोसरी, और कुछ भी करने के लिए जो भी आपको लगता है कि अच्छा 10 से 15 मिनट में अभी अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के आई कैन रिवाइज अ पर्टिकुलर थिंग, डू दैट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज। आपको पता है यूट्यूब पे देर आर अ लॉट ऑफ रिविजनरी वीडियोज आउट देयर, जो आपको देख के यू कैन रिवाइज दोस कंसेप्ट्स, बट यहाँ पर एक अंडरलाइनिंग फैक्ट वो आ जाता है, where I am also saying that in my point number 1, that refer to only one book, stick to only one coach. Why I am saying that? Institute ka material is more than sufficient. You have to stick to that. You have to consider it your Bible, right? उसके साथ आपने अपनी जो भी coaching ली हुई है, stick to your tutor. Do not go around and waste your time looking at different videos and different ways of teaching, because वो आपको confuse करेगा students. Trust me, because हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है, and if you have taken up particular coaching from one particular teacher, और आप उन्हीं, I mean I would say कि stick to that particular teacher rather than exploring at this point of time looking at different other videos. So जो बच्चे self study कर रहे हैं उनके लिए तो definitely you have to listen to a few of the videos, and जिनका आपको pattern सबसे ज़्यादा understanding लगता है और जिनका आपको video ज़्यादा explainable लगता है, you stick to them. What I'm trying to say is that एक चीज को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छे से रिटेन होगी, रादर देन अगर आप उसी एक चीज को 10 अलग तरीकों से पढ़ोगे, बिकॉज वो 10 अलग तरीकों से पढ़ोगे तो दैट विल कंफ्यूज यू। बट उसी एक चीज को आप कहीं पर एक ही बार, मतलब जो एक बार एक बुक से पढ़ोगे और 10 बार उस चीज को पढ़ोगे, दैट वुड हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट, दैट वुड मेक यू रिटेन एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इंस्टेड इफ यू रीड आउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन 10 different ways, it is going to confuse you, which is why I'm saying that stick to only one tutor। एंड इंस्टीट्यूट ने आपको जो भी मटेरियल दिया हुआ है ऑन देयर वेबसाइट, गो थ्रू दैट। आप प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स करो, मॉक टेस्ट करो, सजेस्टेड आंसर्स देखो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, पैटर्न देखो, हाउ इस टाइम को उन चीज़ों में यूटिलाइज करो, बिकॉज इवेंचुअली राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज फोकस ऑन आपने अभी तक क्या पढ़ लिया था। पहले आप जो पढ़ाई कर रहे थे, दैट वाज दैट यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एंड यू हैव टू अपीयर फॉर योर एग्जाम। बट अब आप इस हिसाब से पढ़ाई करो कि आपने एक लेवल ऑफ पढ़ाई तो कर ही लिया है, अब आपने इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपने अपनी उस पढ़ाई को और एनहांस करना है, एंड आपने अपनी उस प्रिपरेशन को इस लेवल तक ले जाना है वेयर इन यू कैन एक्सेल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड वो चीज़ आपको आपकी परफॉर्मेंस में थ्रू मॉक टेस्ट, थ्रू प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, थ्रू सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन सब से आपको अपने आप पता चलेगी। यू मीन यू विल सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ
and you would get another level of confidence. And then when you will be more excited to appear for your exam rather than being stressed. And because अगर आप stressed out होते हो तो आपकी performance affect करती है. Confidence at the same time कैसे आता है? Because you have done that particular whatever was possible, you have done it for that subject, and now you have that confidence that now you have to just apply, और उन सब जो आपने अभी अपनी मेहनत करी है वो आपने उस पेपर में जाकर देकर आनी है. सो दिस इज द डिफरेंस. जो बच्चा पढ़ाई उस हिसाब से कर रहा है कि यार बस कैसे भी करके मेरे को पेपर देना है, उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अलग होगा. और जो बच्चा पढ़ाई ऐसे कर रहा है कि मेरे को सब कुछ करके जाना है, आई हैव टू डू आई हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड एंड आई हैव टू अपीयर इन द पेपर कि दिस इज माई फर्स्ट एंड माई लास्ट अटेम्प्ट, एंड मेरे को 100 में से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, एंड रेस्ट इज लाइक जो भी मैंने तैयारी करी है आई एम श्योर कि आई विल एक्सेल इन इट. सो these are the two approaches. Now you have to decide what approach you want. जो बच्चा स्ट्रेस्ड होता है स्टूडेंट्स, वो आती जाती चीज को भी खराब कराता है. दिस इज द रीजन. एंड वो स्ट्रेस कैसे आता है? बिकॉज आपने कभी वो रियलिटी चेक लिया ही नहीं व्हेन कि जब हम अपना पेपर कर रहे हैं तो वो उसमें क्या चैलेंज आ सकता है. A lot of students realize it at the time of solving their exam paper कि उनका स्पीड कम था, और while doing a practical question paper they realize कि उन्होंने silly mistakes बहुत ज़्यादा करी. वो उस टाइम पे realize करने से ज़्यादा आप अभी realize करो वो सब कुछ. So this is why I am focusing and I am stressing on the fact that you should be doing a lot of practice test papers and mock tests. Test series ले लो कोई. You want me to give you mock test papers या मैं कुछ frame करूँ, or you want me to check your papers, feel free to do that. Feel free to reach out to me. I will definitely help you out. वन मोर थिंग इज, आई एम श्योर काफियों ने अभी तक करा ही होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो अब कर लो. ये जो 8 से 10 घंटे का टाइम मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज द मिनिमम. जो बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. बट ये जो आप 5 से 10 घंटे का टाइम निकाल रहे हो अपने पेपर्स के लिए, सो कोशिश करो कि उसमें से एक स्लॉट ऐसा हो, either it is early morning or it is late night, because at that time आपको कोई बाहर की आउटसाइड डिस्टर्बेंस नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ पर मतलब आपको वो सोशल मीडिया पे जाने का या व्हाट्सएप मैसेजेस आने का वो सारा चीज़ का चांसेस बिल्कुल 10 क्या 0 to 5% हो जाता है. सो आई वुड से कि वो एक स्लॉट, इफ यू आर अर्ली मॉर्निंग पर्सन देन वेक अप एट 4 to 10 you study, or take a break of half an hour or so, take a nap in between. But आप 4 से 10 की जो वो पढ़ाई करोगे, you would see the level of efficiency, you would see कि concentration कितना ज़्यादा है. कोई आपको you don't have to get up, you don't have to attend any calls, you don't have to do any household thing. उस टाइम पर वो सब कुछ भी नहीं करना, and you can sit and do your concentrate on your subjects or your exams fully. तो ऐसे टाइम स्लॉट्स चूज करो. एंड इफ यू वांट टू स्टडी एट द नाइट, sleep in the daytime, sleep for good 2 to 3 hours in the daytime, and then you can, if you are a night person, you can sit from 12 to 5, and then you can sleep at 5 or 4 or whatever, whenever you feel tired. मतलब वो 6 hours का slot जो मैं आपको बोल रही हूँ, out of these 8 to 10 hours which I'm asking you to study daily, वो 6 hour की जो आपकी पढ़ाई होगी स्टूडेंट्स, you will see that the efficiency level therein would count to at least 12 hours. अगर आप उसमें concentrate और आप अपना efficiency proper तरीके से, I mean if you're focused in that particular time and you're not doing anything, तो आपको दिखेगा कि आप वो 6 घंटे की पढ़ाई को इस तरीके से करते हो कि उसका आउटपुट ऑलमोस्ट डबल भी आ सकता है इफ यू आर डूइंग इट वेरी एफिशिएंटली. डबल नहीं तो कम से कम नहीं तो 1.5% तो डेफिनेटली होगा. सो
do that. And if some students are doing that, very good for them. I would really appreciate that, and they definitely would know कि कितना ज़्यादा beneficial है वो उन स्लॉट्स में पढ़ाई करना, बिकॉज उस टाइम पे आपको बाहर की आउटसाइड कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एंड यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग, एंड आपका माइंड भी, बिकॉज देयर आर नो डिस्टर्बेंसेस, आपका माइंड भी अपने आप आपको इनोवेटिव आइडियाज देता है कि यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन डू दिस ऑल्सो, right? So coming to, let's just brush up all of them, and अगर मैंने कुछ miss out किया है तो I will talk to you about that also. I've told you plan किस तरीके से क्या करना है इस टाइम के accordingly. You have to make notes. जो आपके notes हैं वो अलग, but आप एक छोटे एग्जाम डे के हिसाब से कि एक दिन पहले जो आपको रिवीजन करनी है उस तरीके की तैयारी या उस तरीके के नोट्स बनाओ, बिकॉज एक दिन की रिवीजन में आप सारा का सारा बस उठाकर नहीं रिवाइज कर सकते. सो मेक सच नोट्स, स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स जो आपको रिवीजन के टाइम या एग्जाम से 2 दिन पहले या एक दिन पहले जितना भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे आपको वो प्रॉपर रिवीजन आपकी प्रॉपरली हो जाए, उस हिसाब से आप नोट्स बनाइए. प्रैक्टिस बाय राइटिंग. If you are doing a theory subject, practice it by writing. If you are doing a practical subject, practice as many questions as you can. This is the only key, right? Brush up your topics. जो topics आपको लगता है are difficult and you might get stuck in the exam, or you might do a question but not do it properly, वो topics को उठाओ. That would again, this point number 4 and point number 1 is again a mixture. जब आप plan कर रहे होगे, when you are evaluating your subjects, your topics, तो वो चीज़ें वहीं पे आ जाएंगी. You will get to know from that particular planning only कि आपको कौन सी topics को अपना brush up करना है, इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है as compared to the other topics. Repeated revisions and mock tests, practice test papers, make audio recordings. While sorry, there is a mistake in the 8 point. Where what I meant from the 8 point is that you have to make audio recordings when you are revising a particular subject. उसी time पे आप अपना audio recording बना लो, and then you can listen to them in your free time or in some time which is not very productive. Like I told you, आप कहीं थोड़ा सा बाहर निकले कुछ लेने के लिए, या आप अपना you are in your tea time or in ऐसी किसी टाइम पे भी आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं and make a use out of it, right? Previous year question papers, choose your efficient time slot. This is very important. These are the these are the pointers. अगर आप इन छोटे छोटे points को inculcate कर लेंगे, आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं. इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने से you will have a systematic way of studying. You will have things in your mind that what you have to look up to, what you have to focus on. So you will get a direction. This is the reason I've mainly made this video, because यहाँ पर इस टाइम के आसपास बच्चे इतना पढ़ लेते हैं that they lose track on why they are doing so much of hard work, and I do not want कि आप लोगों का hard work waste जाए, and किसी भी X factor की वजह से आप अपनी सारी करी हुई मेहनत को you lose out on it. I do not want that. So for that, self motivation is the key. I can say I can make X number of videos to motivate you guys, but अगर आप अपने आप को motivation, if you are not motivated enough for yourself, by yourself, I cannot do anything for you. So you picture yourself what you want to be, and if you do things rightly, correctly at this point of time, where you will be 5 years down the line, or for that matter 10 years down the line. So student, this is the only profession, CA, CS, CMA, these are the only professions which alongside a good job give you a good place in the society, gives you immense it gives you a pride feeling, it gives you respect in the society, your parents are proud of you. So वो सारी चीज़ों को आप
वेस्ट नहीं जाने दे सकते. This is your dream, this is your parents' dream, this is you know a milestone that you have to achieve in order to do well in your professional life or in your future. So you cannot just do any injustice to this. And उस चीज को अगर आपको लगता है कि यू आर लूजिंग ट्रैक एंड नो मैटर व्हाट इफ यू आर how hard you try, you're not able to focus, then read motivational books, listen to motivational songs. Imagine who are your कि who are your role models, उनका struggle याद करो. Anything in life is achievable only after struggle. अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप इतनी मेहनत करके why are you sacrificing, बिना sacrifice के कुछ नहीं मिलता. So struggle is important. Trust me, if you are sacrificing this time for a bigger thing in your life, once you achieve it, everything will feel worth it. तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं मुझे ये टाइम अपना आई डोंट नो, आई ऑल्सो हैव टू एंजॉय माई सेल्फ. सब कुछ मिलेगा लाइफ में. Sacrifice these 1 or 2 months, you will get everything back in your life, right? At the end of it, I'll just say all the very best for your exams, and try and inculcate these pointers in your studies, and you will definitely see a difference. You would see a different level of motivation in yourself, different level of focus which you were losing, and once you adopt these pointers, you will see that where you were which were your strong points and which are your points which you have to focus more on. So guys, all the very best for your exams. Do very well in your exams, and I wish that you all pass out with flying colors. Goodbye.